is staying on this planet from centuries, and people are surviving. But because of, you can say, the industrialization and so many things that we are carrying out, हमारी ही वजह से the you can say the planet has because of so many of our activities, the planet has become you can say unsustainable because of various kinds of our activities. As we can see around us, that the effects of global warming and environmental change are very dominant. पहले, you can say, abhi yesterday I was there with the vice chancellor of the university of one university is there in Shimla, Himachal Pradesh. So he is saying that or he was saying that the you can incidents of cloud burst बहुत ज्यादा हो गए, और टेम्परेचर जो वहां पर था, आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज द टाइटल ऑफ आवर लेक्चर इज ऑन सस्टेनेबिलिटी. टेम्परेचर वहां पर ज्यादा गर्मी होने लगी है, या कहीं पर भी इन आवर सराउंडिंग ऑल्सो, वेयर एवर वी लिव, आइदर वी लिव इन द नॉर्थ इंडिया और वी लिव इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जिन दिनों में सर्दी पहले हुआ करती थी, you can say there is a shift, or the pattern of the rainfall has also shifted because of so many of our activities, especially because of the burning of fossil fuels. तो हमारा जो सराउंडिंग है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो there are effects of environmental change, global warming, and the planet has become, अगर ऐसी ही हमारी एक्टिविटीज कंटिन्यू रही तो इन द नेक्स्ट यू कैन से 50 years टू कम, और ये सारी जो एक्टिविटी हुई हैं, इट हैज बीन ड्यूरिंग द लास्ट 100 years ऑल्सो, और पिछले यू कैन से ड्यूरिंग द लास्ट 40 years दे हैव बिकम क्वाइट, उनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा देखने को मिला है. एंड इफ आवर सिमिलर एक्टिविटीज will continue, we will continue to do the similar kind of activities, then in the next 50 years, let us say by 2070, अगर ये सारी चीजें और चेंज हो जाए, गर्मी जो है वो दिसंबर जनवरी में पड़ने लगे नॉर्थ इंडिया में की अगर बात करें, और बारिश जो है वो हो रही है बहुत ज्यादा, सर्दी में होती है, अगर ये बारिश का सीजन शिफ्ट होकर जो है वो अक्टूबर नवंबर हो जाए, तो ऑल थिंग्स विल चेंज एंड यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. Therefore, we have to make our planet sustainable. So related to this, in 2009, I think सबके समझ में आ रहा होगा, we are talking, and it would be better if we can make this session interactive from both sides. जो आपके क्वेश्चन है इससे related, that you can come up with, and I will try to answer most of your questions, not all, because nobody in this world can reply to all the questions, but I will try to satisfy you and would try to answer your question. Is it okay for all the participants? Because as I can see, there are around 66 participants over here. So you can ask some. I think somebody is raising the hand also. Please ask the question. Please. Someone has raised a, you can say, raise a hand. Okay, nobody is asking then. So, because of the burning of fossil fuels
and global warming and so many things. The government of India in 2009 started the Jawaharlal Nehru National Solar Mission because you can see that in our homes also, or wherever we live, in our offices, in our homes, or in the, you can say, mall, shopping malls, और जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर the demand of electricity is increasing day by day. आज से if you go 30 years back, everybody was having a जिस household में भी हम लोग रहते हैं, the meter was of 1 kilowatt, 2 kilowatt. ऐसा ही नहीं है? प्लीज बताइए भाई. आज जी से सर. 30 years if you go back, हमारे घर में जो मीटर लगा होता है उसकी रेटिंग कितनी होती थी? कौन बताएगा? सर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट. 1 किलोवाट और 2 किलोवाट होती थी. और आज नॉर्मली जिस जगह पर हम रहते हैं शहरों में, वहां पर इन जनरल मीटर की रेटिंग कितनी है? 4 किलोवाट, 5 किलोवाट. इज इट सो? यस सर. ऐसे है नहीं? तो हमारी अगर 5 किलोवाट हमारी रिक्वायरमेंट, एक तो पॉपुलेशन भी बढ़ी है, और उसके अलावा अगर एक हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट से 5 किलोवाट हो गई है, तो the demand of electricity has increased 5 folds if you keep the population you can say at par 30 years back. But the fact is that the population has also increased. तो 5 गुनी पावर रिक्वायरमेंट हमारी हो चुकी है एक हाउस होल्ड की से. In addition to that, there has been so many industries, so many shopping malls, so many schools, colleges. ये वो चीजें हैं जो 30 साल पहले नहीं थी. In addition to that, they have come up. So the demand of electricity has increased, you can say, 10 times, or even more than that. That data also we will show. कितनी इंस्टॉल्ड इंडिया की कैपेसिटी थी 1947 में, और रफली 78 ईयर्स हो चुके हैं. 78 ईयर्स में कितनी पावर रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई है. तो इसको मीट करने के लिए अगर हम फॉसिल फ्यूल ही जलाते रहेंगे, बिकॉज व्हेन आई वाज द स्टूडेंट 25 ईयर्स बैक, तो जी जो जनरेशन थी इंडिया की वो किस चीज से होती थी बताइए? कौन बताएगा? जो पावर जनरेशन है इंडिया की, जो हम लोग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक को टच करता है. जितने भी लोग हैं, पावर जनरेशन, चाहे वो आप में से कोई ज्यादातर लोग टीचिंग प्रोफेशन में है या रिसर्च में है, चाहे आपके बैकग्राउंड हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, और सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपकी बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग, हर इंसान को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने घर में. आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले व्हाट वाज द सोर्स ऑफ पावर जनरेशन? कौन बताएगा? सर थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट किस चीज से चलते हैं? सर कोल से. कोल से चलते हैं. कोल एंड वाटर. कोल एंड नहीं, वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी. वाटर तो कूलिंग के लिए काम आता है. जैसे हमारी गाड़ी चलती है ना, जब आप लोगों ने देखा होगा, और उसके अंदर एक रेडिएटर भी लगा होता है और एक पानी उसके अंदर सर्कुलेट करता है फॉर द पर्पज ऑफ कूलिंग. और जब गाड़ी आपने देखा हो, कभी कभी पुरानी गाड़ी होती है या नई गाड़ी में भी कभी कभी लीकेज हो जाती है पानी की, तो गाड़ी हीटअप हो जाती है. हीटअप होने के बाद स्टार्ट नहीं होती है. देखा है नहीं ऐसा? देखा है सर. तो पानी का तो वही काम होता है थर्मल पावर प्लांट में. जहाँ पर बर्निंग होती है या कोयला जलता है, उसको ठंडा करने का काम होता है. सर एक काम और होता है वाटर का. वाटर को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे टर्बाइन मूव करती है. क्या करता है वाटर? वाटर टर्बाइन को मूव करने के काम आता है. उसकी वेपर बनती है वाटर की. हाँ, वो भी एक काम है.
लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो यानी एज ए फ्यूल क्या चीज यूज होती है उसको, वाटर इज नॉट यूज एज ए फ्यूल। जी अगर यस वाटर से ही काम, अगर वाटर इज फ्यूल की तरह यूज होने लगे तो सारा मसला दुनिया का हल हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे प्लेनेट पर जो 2/3 चीजें हैं, 1/3 तो रफली लैंड है और 2/3 वाटर है। वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो अगर वाटर इज यूज्ड एज ए फ्यूल, so all the issues of this, you can say, mankind will be resolved. But fortunately, or unfortunately, I don't know, ये वाटर यूज नहीं हो पा रहा है एज ए फ्यूल। दिस इज फॉर्चुनेट फॉर अस और अनफॉर्चुनेट फॉर अस। जो यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में वो कोल यूज होता है। सो वी आर टॉकिंग दैट आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले या और उससे पहले, एटलीस्ट 25 years बैक व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था और देखा भी था, डेटा से आज भी अवेलेबल है डेटा, क्योंकि ये 75% ऑफ एनर्जी वाज जनरेटेड फ्रॉम कोल। और जब पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, अब पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। एक तो ये कि इतना सारा कोल कहाँ से आएगा, दूसरा ये है कि अगर कोल ले भी आए आप कहीं से तो इट वुड इमिट ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and that would cause great hazard to the environment, and global warming will be there and so many things. Therefore, I was telling that in 2009 the government of India started the Jawaharlal Nehru National Solar Mission। जब हमारे पास पावर जनरेशन 2009 में सोलर से ऑलमोस्ट जीरो था, थोड़ा बहुत था होगा, बट 2009 तक पावर जनरेशन सोलर से नहीं था, या 1% 2% होगा, हार्डली, इतना भी नहीं होगा। बट नाउ यू नो, अब पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी कितनी है और सोलर से कितना पावर हम जनरेट कर रहे हैं। पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी 510 गीगावाट तक पहुंच चुकी है आज इंडिया की, और इसके अंदर सोलर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 25% है। अब हम कितना सोलर कितना जनरेट कर रहे हैं, 110 गीगावाट रफली। और ये बड़े बड़े मुल्कों में नहीं हो रहा दुनिया के, जो इंडिया में हो रहा है। इवन जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं यूरोप के, तो वो इस चक्कर में है कि कहीं डेटा का फ्रॉड तो नहीं है। इंडिया में इतनी पावर जनरेट पिछले 16 साल के अंदर, अपने 16 साल के अंदर इंडिया हैज रीच, और 110 गीगावाट की कैपेसिटी है। बहुत सारे मुल्कों की भी इतनी पावर जनरेशन है ही नहीं, क्योंकि उनकी इतनी आबादी नहीं है। तो बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दी नेशनल मिशन इन 2009, और आज की डेट में मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए, बाकी तो थ्योरी तो बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी में आप जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, अगर इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है 110 गीगावाट अगर हम जनरेट कर रहे हैं, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो हर इंडिविजुअल का है, और जिसका नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। दिस इज द पॉइंट। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन हेल्प द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिटीजन्स। जितने भी लोग इस मुल्क के अंदर या किसी मुल्क के अंदर रहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट को हम हेल्प कर सकते हैं, या गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे। इन अदर वर्ड्स, वी विल हेल्प अस ऑल। हम सिर्फ अपनी ही हेल्प करेंगे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर वही पावर हर रोजाना जो है लोड हमारा बढ़ रहा है। अगर लास्ट ईयर हमारे घर में 2 AC थे, तो आज हमारे घर में 3 AC है। लास्ट ईयर जो है वो
किसी घर में छोटा फ्रिज था, आज बड़ा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। लास्ट ईयर सिंपल वॉशिंग मशीन थी, इस साल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो डे बाय डे ये तो घर का हाल है, सिर्फ इसलिए आई एम टेलिंग दिस बिकॉज एवरीबडी लिव्स इन होम। इन एडिशन टू दैट, कहीं पर भी ऑफिस में या वेयर एवर वी गो, द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसको मीट करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वी कैन इंस्टॉल सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम ऑन आवर रूफटॉप। हम अपने छत पर भी लगा सकते हैं, एज दैट टू इज वेरी चीप, बिकॉज हर स्टेट उस पर, एक तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर इफ यू आर इंस्टॉलिंग 3 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, तो उस पर हमें कितनी सब्सिडी मिलती है अगर हम अपने छत पर लगाते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हम 3 किलोवाट का लगाते हैं तो कितने यूनिट जनरेट होंगे उससे, बताए कोई बता सकता है? एनीबॉडी इन दी मीटिंग, जो भी इस लोग इस मीटिंग में है, हमारे घर का कितना खर्चा होता है, कितने यूनिट हम पर डे खर्च करते हैं और हम कितने यूनिट खुद जनरेट कर सकते हैं? एनीबॉडी? कितने का हमारा बिल आता है और अपनी कितना जो है वो यूनिट पर डे में या पर मंथ हम कितना खर्च करते हैं? एनीबॉडी? बताए भाई, कौन बताएगा कि कितना? अपने घर का बिल तो सबको पता होगा, कितना बिल आता है? भाई किसी को अपने घर का बिल पता है? कोई बताएगा भाई अपने घर का बिल कितना आता है? सर 250 से 300 के बीच, मतलब यूनिट होते हैं, कभी 350 होते हैं, गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, तो बिल कितने का आता है आपके घर? 300 बिल यूनिट सर, लगा लेते हैं हाँ रफली सर, पर डे। आपके यहाँ 10 यूनिट पर, बिल कितने का आता है आपके यहाँ? सर बिल 2500 3000। हाँ, 3000 रुपये के अगर 300 यूनिट खर्च होंगे तो सब मिलाकर जो फिक्स चार्जेस है और जो पर यूनिट के साथ आते हैं, मान लीजिए आपको 3000 रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है ना? जी ठीक है भाई, रॉबिन ने बताया ना? रॉबिन सर, कैशमिया, है? कैशमिया। आवाज नहीं आ रही, क्या कहा? चलो, 300 यूनिट अगर खर्च हो रहे हैं और 3000 रुपये का बिल आ रहा है, तो अगर हम यही एक सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम अपने रूफ टॉप पर लगवाते हैं तो 3 किलोवाट का सिस्टम रफली हमें पड़ेगा 1.5 लाख रुपए में, ठीक है? और 1.5 लाख रुपए में 70,000 सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 38,000 सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो कितने का? 1,08,000 1,08,000 रुपीज सब्सिडी रिटर्न बैक इन आवर account. So how much would be the cost of the system? The cost of the system would be 42,000. कितनी होगी भाई? बस एक मिनट हेलो, am I audible? Yes, sir. तो Yes, 3 sir. किलोवाट का अगर हमारा मीटर है और हमारे 300 यूनिट खर्च हो रहे हैं, 3,000 रुपये का बिल आ रहा है, तो कितना सबके यहाँ होता होगा? अगर हम इसी सिस्टम को अपने रूफ टॉप पर लगवा लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो हमारा जो सिस्टम है वो पड़ेगा 1.5 लाख रुपीज का। इसके अंदर से रफली 1.1 लाख रुपीज हमारे, या 1,08,000 रुपीज हमारे वापस आ जाएंगे।
सिस्टम कितने का पड़ेगा हमें? रफली 42,000 का। ठीक है, किलोवाट का सिस्टम 42,000 रुपीज का पड़ेगा ओनली। और फिर हमारा बिल कितना आएगा उसके बाद? बिल आएगा हमारा ऑलमोस्ट 0 रुपीज। फिक्स चार्जेस होंगे 200-250, फिर वही बिल आएगा। तो जो 42,000 रुपीज हमने खर्च किए थे, दैट वुड बी रिटर्न बैक इन 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स। अगर सर्दियों में बिल हमारा कम आता है विंटर सीजन, तो दिस अमाउंट वुड बी रिटर्न बैक इन 2 ईयर्स और 1.5 ईयर्स, एंड द लाइफ ऑफ द सिस्टम वुड बी अराउंड 25 to 30 ईयर्स। एंड और जो सी रनिंग कॉस्ट है उसमें हमें कुछ पर मंथ उसके अंदर खर्चा नहीं करना है, वो दैट वुड बी फ्री। तो आफ्टर 2 years we will be getting, you can say, the amount would be paid back in 2 years, and we will take the, you can say, enjoy the facility for the rest 23 years of the life, जितनी भी इसकी लाइफ पीरियड बची है। ओके, ये किलोवाट का सिस्टम जो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम हम अपने रूफटॉप पर लगवाएंगे, इट वुड जनरेट अराउंड 4 to 5 minutes पर डे, 5 minutes पर डे। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि इनके 10 यूनिट का खर्चा है, तो 10 यूनिट का खर्चा है, तो अगर हमारे 15 यूनिट जनरेट हो रहे हैं, तो वी वुड बी एबल टू sell the rest 5 units to the grid daily, and जितना तो गवर्नमेंट हमसे यूनिट खरीदेगी और हम यूनिट उसको दे पाएंगे। तो इज इट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट? प्लीज बताओ भाई। भैया तुम्हारे यहाँ के लोग, हमारे तो सारे लोग ठीक हैं। इज इट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट? पिछले सब सही है। ये सब प्रॉफिटेबल है। देखो मेरे दोनों को कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो उनके साथ ये सब प्रॉफिटेबल है। बनाती हूँ, इनसे दौड़ने लगता है, इनसे बनाती तो उनसे दौड़ने लगता है। अपना बैलेंस नहीं, मैं तो आजकल सब जिससे बात करनी है जितनी करनी है ये बोतल में रख ले रही है। बताओ भाई, इज इट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट? दैट वी Sir, विल क्लीन द एनवायरनमेंट। हमारी वजह से क्या Yes, होगा sir, कि एनवायरनमेंट profitable. साफ होगा। अगर यही यूनिट थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होंगे, तो इट वुड क्रिएट पॉल्यूशन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द एनवायरमेंटल चेंज एंड सो मेनी थिंग्स। यही यूनिट्स अगर सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम से जनरेट होंगे, then it would be a profitable business for us, and it would clean the environment also. So everybody among us should plan in near future to install a solar photovoltaic system, because this is, you can say, our social responsibility also. Okay, so this is one thing, and as you can see in the slide also, that the demand of power has grown rapidly, and today we find it difficult to match the demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पावर चली जाती है। कोई एरिया इंडिया में ऐसा नहीं है जहां पावर कट नहीं हो, या कोई एरिया ऐसा है इंडिया में जहां पावर कट है? बताइए भाई, सबके यहाँ पावर कट होता है? नहीं। Yes, sir. ये सब होता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम घर घर पे जो है वो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगवाएं। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट लगाए। तो गवर्नमेंट को लगाने के लिए स्पेस चाहिए, चाहे कोई सा भी प्लांट, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर और सोलर और विंड, whatever it is. For that the government requires space.
and because of the huge population in our country, there is a scarcity of space. So one solution is that the government लगाए. Another solution is that every individual should contribute. So every individual can contribute by installing a solar photovoltaic system at its rooftop. ठीक है ना? आज चलो अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एक बात ही बताइए कि जब इसको यानी छोड़कर लेट अस कम टू दी जनरल डिस्कशन के जब इलेक्शन होते हैं, जब पावर कट क्यों नहीं होता है, पावर कहाँ से आती है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद पावर कहाँ से आ जाती है, हर स्टेट वाइज अगर आप देखें, कोई बता सकता है? पावर जनरेशन ज्यादा हो जाता है इलेक्शन से पहले, ये इलेक्शन के बाद पावर जनरेशन कम हो जाता है, ये क्या होता है इसमें बताइए, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है इस चीज को? दिस इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन. Anybody in the group? Let me tell you that जिस तरीके से मार्केट के अंदर सब चीज आज की डेट में मार्केट के अंदर सब चीज दिखती है भी नहीं दिखती. लेट अस मेक द थिंग्स Yes, इजी. sir. कोई भी चीज मार्केट के अंदर आप जाते हैं, जैसे ब्रेड बिकती है या दाल बिकती है, चावल बिकते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी बिकती है मार्केट के अंदर. तो बात समझ में आ रही है नहीं? और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बिकती है? इलेक्ट्रिसिटी बिकती है, कौन बिकवाता है इसको? कौन सी एजेंसी है इंडिया में? इलेक्ट्रिसिटी बिकती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू. जब पीक आवर्स होते हैं तो एक यूनिट के जो रेट हैं वो ज्यादा होते हैं, 15 यूनिट रुपए यूनिट, 16 रुपए यूनिट तक भी बिक जाता है मार्केट के अंदर. और जब ऑफ पीक आवर्स होते हैं तो एक यूनिट 2 रुपए 3 रुपए का भी बिकता है. तो जब मार्केट के अंदर महंगा यूनिट होता है तो कुछ स्टेट महंगा यूनिट खरीद लेते हैं और कुछ स्टेट महंगा यूनिट नहीं खरीदते. जब महंगा यूनिट खरीद लेते हैं तो पावर अवेलेबल होती है, पावर कट नहीं होता. पावर अवेलेबल होती है उस स्टेट में जहां पर जो भी पावर खरीदता है. और जब सस्ता यूनिट होता है तो हर कोई ले लेता है. तो जब इलेक्शन होता है कहीं पर भी तो वो जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है वहां पर वो अपने यानी स्टेट को जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए महंगा यूनिट भी खरीदती है. और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वो फिर जो है वो महंगा यूनिट नहीं खरीदते वहां पर. तो दिस इज दी प्रोसेस हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज परचेज फ्रॉम दी मार्केट एंड इस तरीके से इसको खरीदा जाता है. तो जब जरूरत होती है तो कोई भी स्टेट महंगा यूनिट भी खरीदता है और जब जरूरत नहीं होती उसको तो सस्ता यूनिट खरीदता है. जब महंगा यूनिट नहीं खरीदता कोई भी स्टेट, देन देयर इज अ पावर कट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. यहाँ पर ज्यादा पावर कट हो रहा है इसका मतलब वो महंगा यूनिट नहीं खरीदेगा. जहाँ कम पावर कट हो रहा है इसका मतलब वहाँ महंगा यूनिट भी खरीदा जा रहा है. दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज परचेज एंड सोल्ड इन द मार्केट. इज इट ओके? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? No, sir. बता जी, बताइए प्लीज. एनी क्वेश्चंस? So the total demand of electricity in India is expected to be 950 gigawatt. You can see by 2030. अभी मैंने बताया अभी हमारी कितनी जनरेशन है रफली. अभी जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया की, जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट है, इसकी आधी.
स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अभी इसकी आधी है। 2030 में कितने साल बचे हैं? 5 साल बचे हैं। 5 साल के अंदर जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी। तो डिमांड जब डबल हो जाएगी तो इसको मीट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, देयर आर टू वेज, आइदर द गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल द पावर प्लांट और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड कंट्रीब्यूट। So the easiest way is that each and every individual should contribute and install a solar photovoltaic power plant at its rooftop, which would aid the government also, that will aid the environment also, and that will aid us also. Because जब हमारे पास अपना पावर प्लांट होगा तो we will become the आत्मनिर्भर, we will be the part of आत्मनिर्भर भारत. Is it okay? पावर डिमांड अभी रफली 500 गीगावाट है, 2030 में 950 गीगावाट हो जाएगी. दिस इंडिकेट्स that India's future energy requirements are going to be very high, and the solution to this challenge lies in maximizing the utilization of renewable energy resources to meet our energy demands. As I have already told that energy is one of the keys to the sustainable development of a country. Solar energy is one of the most popular and prominent source of renewable energy resources. The relative share of solar energy is growing exponentially in the world energy sector. As I was told, because of the rapid decline in the cost of solar modules, development and advancement in technology, enhancement in efficiency, ample availability, and very low maintenance cost. The grid-connected configuration of the solar photovoltaic system has been recognized as an alternate source for fulfilling the demand of power. ओके, तो इन सब जो जैसे मैंने अभी बताया कि सोलर क्यों लगाना है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, डिमिनिशिंग ऑफ यानी फॉसिल फ्यूल तो खत्म होते जा रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, अपनी सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाना है, और एनर्जी सिक्योरिटी है इसके अंदर, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए एकदम से और हम यूज करते रहे तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट दी एनर्जी. रिलायबल पावर इन रिमोट लोकेशन, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, आने जाने के संसाधन नहीं है, जो शहरों से दूर लोकेशन है, वहां पर आज तक बहुत सारी जगह पावर सप्लाई नहीं है. वहां पर अगर सोलर, तो सूरज सब जगह रोजाना निकलता है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज होगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंटेंसिफाई ह्यूमन वेलफेयर एज वेल एज contribute towards a safe future. So these are the few reasons because of which we should install a solar photovoltaic system. So this is the India's installed capacity, and this is the renewable energy. You can see that the contribution of solar amongst the renewable is substantial, 40%. We have among the renewable the wind, हमारे पास स्मॉल हाइड्रो है, बायोमास है, ये सारी चीजें हैं. सो ये 2024 की फिगर है. सोलर लीड्स विद, अब ये 2024 की पुरानी फिगर है. एक साल में हम कहाँ तक पहुंच गए? 100, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, 7वां महीना चल रहा है. तो वी हैव gone up to 110 gigawatt, followed by wind का जनरेशन है, बायो एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो, and all these things. So you can see this figure also. So this is India's power sector at a glance. पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो शेयर ऑफ रिन्यूएबल इन नेट कैपेसिटी एक्सपेंशन वॉल, जो यानी 2022 में जो था, उसके बाद जो दुनिया के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है, उसके अंदर 9% तो और चीजें बढ़ी है, 91% रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ी है. तो दिस इज, यू कैन से दी वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन दिस.
तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चन भाई किसी का? नो सर, हाँ बताइए। नो सर, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन तो जरूरी होता है, या तो सब कुछ समझ में आ जाए या फिर भी ना समझ में आए। So the gist is that, यानी जो निष्कर्ष आप सबका वो ये है कि हम लोगों को each and every individual can contribute towards sustainable development, और अगर हम sustainable development के लिए contribute करेंगे that would make our planet sustainable life, उस पर हम यानी जीने के लायक बचेंगे हम लोग। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। आज इंडिया के साथ अच्छी बात ये चीज यूरोप में नहीं है। इंडिया के साथ अच्छी बात क्या है कि हम ऐसी लोकेशन पर हैं जहां 300 से ज्यादातर लोकेशन पर, और ऑलमोस्ट ऑल द लोकेशंस वी हैव सनी डेज, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनुअल ग्लोबल रेडिएशंस आर इन राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात, जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है वहां पर यह सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव होता है। तो वी कैन जनरेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ solar energy in our country. This is some data related to solar energy. I am not going into the details of these because, as I can see, people are not interacting in the lecture. The lecture, कोई भी lecture, चाहे क्लास का lecture हो, and most of you are teachers, it is more, you can say, the more interactive the lecture is, the more knowledge transfer can take place. तो किसी भी जगह की कितनी सोलर रेडिएशन है, वहाँ हम सोलर रेडिएशन से उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पे इंडिया के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD fully provides data for quite few stations. It is considered as the base data for research purposes also. तो ये इसके एडवांटेजेस है सोलर के, क्या है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल हो जाता है। ये विंड के साथ नहीं है। विंड जो है आप घर घर पे लगाने तरह आसान नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड बदलती है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस वक्त में कितनी पावर जनरेट होगी, और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती है साल भर। सिंपल, फ्लेक्सिबल, फ्री फ्रॉम नॉइज एंड पोल्यूशन, लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी थोड़ी सी इनिशियल कॉस्ट लगानी पड़ती है, रिक्वायर्स एडिशनल बैकअप, यानी अगर आप या तो ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हैं वरना आपको बैटरी चाहिए होगी, और स्टोरेज प्रॉब्लम है इसके साथ। और एप्लीकेशन क्या है, पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर जहां पर अभी तक ग्रिड का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां पर इसको लगा सकते हैं। और स्ट्रीट लाइटिंग में आपने देखा होगा, रूरल टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे सिग्नलिंग, पंपिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, ये कॉमन एप्लीकेशन है इसकी। ये सोलर सेल के बारे में है, ठीक है ना, इसको नहीं टच करते हैं क्योंकि ये बहुत फिजिक्स के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन पीपल यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो ये है। तो ये दो तरीके के सोलर सिस्टम होते हैं। एक ग्रिड कनेक्टेड होता है जिसको आप ग्रिड को पावर बेच सकते हैं, एक स्टैंड अलोन होता है जिसमें आप पावर अपनी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रिड को नहीं बेच सकते। दो जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं लगती है तो वो सिस्टम चीप होता है। जिसमें बैटरी लगती है, जो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, वो सिस्टम कॉस्टली होता है।
दोनों तरीके के सिस्टम है, स्टैंड अलोन सिस्टम है, जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। आप देख सकते हो ये स्टैंड अलोन है और ये ग्रिड कनेक्टेड। दोनों तरीके के सिस्टम हमने आपको दिखा दिया। पता नहीं किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। डिजाइन इस तरीके से, डिजाइन का आप लोगों का अलग अलग यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ग्रुप का, डिजाइन भी है। अगर किसी को लगवाना हो कभी या कुछ क्वेश्चन पूछना हो उसके ऊपर, आप हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछिए। चैलेंजेस है ग्रिड लगाने के। ये इस कंक्लूजन है आज के लेक्चर का। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो देन यू कैन कम अप विद क्वेश्चंस प्लीज। आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Otherwise, if no question is there, then we can disperse. You can always write to me whenever you have any questions related to solar energy, because we are working in this area and we have got Good evening, sir. projects from the government Good also. evening, sir. Yeah, Sir, yeah, I have a question, sir. This Yeah. is Panchali Kansar from Northeast. your introduction, I'm a, please. yeah, I'm from Jorhat Kendriya Mahavidyalaya, Assam, and I'm a teacher of geology. My background is geology. So, sir, I have a question. All these solar carousels are made up of with plastics. Is it, sir? Your voice is not clear because some Somebody has. voice is coming from background also. Okay. Now, sir, it is clear. Yeah. Sir, all the solar carousels are made up of with plastics. Is it, sir? Solar? What? Solar carousels are made up of with plastics. The solar panels are not made from plastic. Who said? What is the material, sir, used for making the solar This is panel? made from semiconductor materials. Okay. Okay. After, suppose, after 10 years, the life of this solar panel is 10 years. Suppose, and No, suppose after, the life is 25 to 30 years. Let me clear okay. this point. Okay. So after that, if it is not usable, then it can be renewable. No, see, this is non-degradable material. Okay. Okay. So even because we have started installing solar panels from, you can say, 2015 or Yeah. after that. Yeah. Okay. So the life is around 25 to 30 years. So this is only for the sake of understanding. This is you can say ये बात बता दी जाती है. Otherwise, the life is you can say even more than that. So Yes, sir. मेरा actually हाँ, question है this कि is not going to ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब हो जाएगा. okay. This would continue to generate power. But the point you are asking that it is recyclable, है ना? Yeah. So I think it would abhi that point has not been reached because we have started, let us say, from 2015. So that Yeah. would be, the time would come around 2045 when we would see that Okay. what should we do with the used solar panel. Yeah. So research is still going on that, but the researcher is of the view that this is not going to degrade and this will continue to generate the power even after 30 Okay. years. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Any other question, please? Sir, I have a question. Yeah. Sir, I am Dr. Esther, representing Dial College from Tamil Nadu. I belong Please, to your voice is not very clear. I am Dr. Esther from Tamil Nadu, sir. Your voice is breaking. Yes.
Yes, Am I audible now? no, you are Am I audible, audible but now, the sir? voice is breaking in between. Okay, so I'm Esther from Tamil Nadu, sir. I represent the food processing department. So Okay. I would like to know whether this solar photoelectric communicators can be used in cold chain process, because usually it is attached to food industry. How can it be used in Everywhere, cold chain process? everywhere it can be power generated from solar panels can be used anywhere in the world, wherever sun is What? available. Okay. What about the lorries that carry milk, which is cold chain process? Is it Uh-huh. possible for us to have this grid in the lorries and regulate the temperature of the refrigerator? Yeah, yeah. Even, you must have heard that a few years back, or during the COVID, an aircraft was made that has taken the round of the whole world. It was running fully on solar panels. So if we can have an aircraft, we can have a car, we can have a bus that runs on solar panel, then we can have your lorry and whatever you said, it can be run on solar energy also. Okay, sir. Thank you so much for your insights. One professor is there in IIT Bombay. He is called as the Solar Man of India. He has made a bus type of his home. He has got everything. He has got kitchen in that. He has got washroom in that. He has got bed in that. The bus or the his moving house is fully running on solar panels. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Any other question from any participant? Okay, if you are not having any questions, then whenever you have questions, then you can always write to me on my email. Then I will try to reply to that. Okay. Okay, sir. Thank you very much to all the participants for listening to me, for bearing with me for the you can say 1 hour or so, and keeping patience. Thank you so much. Because topic may not be interesting to many of you, but I have tried myself to present the topic in a manner that is very easily understandable to all the audience, considering the heterogeneous nature of the group. Okay, so thank you once again for listening and giving the patience. Thank you once again. Thank you, sir.